All right, now let's have a little bit of fun. For this one, I'm going to need some help. So can I request my fellow compeers to please come on stage? Thank you. Okay, so we're going to be doing a crowd wave for everyone to have fun. So I'm going to need you all to take out your phones and switch on your flashlights. Yes. Please hold your phone in the right hand. It looks just like a concert. It looks really nice. Okay. So we're going to divide yourselves into groups. So Parmita will handle that most side. Yati will handle these two rows. I'll handle this one. And Ashit will handle that one. Yeah. Okay. So this will be group 1, this is group 2, this is group 3, this is group 4. So what we're going to do is, we don't want anybody to stand up. Simply when we call out your group name, you just have to raise your hands up with your phones, okay? Can we try that out for group 1 first? Just raise your hands with the phone. Perfect. And then keep them down. Put them down as well. Okay, cool. Group 2, can you all do the same? And then down. Yes. Okay, group 3, same for y'all. Up and then down. Group 4. Yes. Thank you. So now we will try to do it all together. So when group 1 finishes their wave, group 2 has to start. When group 2 finishes, group 3 starts. And when group 3 finishes, group 4 starts. Is that okay? All right. Okay, group 1, I'll give you. Okay, all of the lights, can we please dim all of the lights so that we can see it better? Yes. Perfect, Oh, perfect. It Thank looks you. really better. nice. Okay. Okay, 3, 2, 1. Group 2. Yes. Group 3. Group 4. It looks really nice. It looks just like a concert, but now we're gonna get it more like a wave, okay? So what we're doing now, we're just raising our hands and we're keeping it down, right? Now I want you all to wave your hand up and wave it down. Is that possible? Yes. Yes. Oh my Yes, god. it that's looks so nice. good. So group 1, group 2, group 3, group 4. Yes. Time and we'll do it all in a row. Parmita give the count for 1, Yati for 2, I'll give for 3, and Ashit will give for 4. Okay? Start. Okay, let's start. Group 1. Group 2. Thank you so much. It sounds so much cooler. Thank you so much. Thank you. Thank Okay. you. It looked really nice. Good job, guys. So, आज का प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल है बिकॉज वैसे तो ये ग्रैंड पेरेंट्स डे नहीं है बट वी स्टिल हैव विद अस सम सेप्टेजेनरियंस इन द ऑडियंस प्लीज कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स इन द ऑडियंस आप 10 साल से आ रहे हो और अभी तक बोर नहीं हुए एट दिस पॉइंट मैं भी थक गया एंड वी ऑल नो इन मोस्ट केसेस with age comes चश्मा and that too अच्छे से देखने के लिए सीधा ही पहनना पड़ता है शायद आज कुछ चश्मा उल्टा पहनना पड़ेगा Up next in this मजेदार program is an unprecedentedly hilarious Hindi skit brought to you by our students of 9th and 10th. अब आप सब सोच रहे होंगे ये skit कैसे होगा टेंशन मत लीजिए These students जो अपनी होमवर्क की स्पीड के लिए फेमस है आज स्टेज पे फुल ड्रामा थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा केओस लेकर आएंगे मतलब अगर आपको लगा था कि सब सेफ होगा यू कैन फॉरगेट इट और एक छोटी सी वार्निंग कभी कभी क्रिकेट बॉल्स भी आपके पास उड़ते हुए आ सकते हैं सावधान रहना नाउ लेट अस एंटर इनटू द हंगामा भरा वर्ल्ड ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी प्रेजेंटिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा
सुप्रभात, सभी का स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के समस्याओं और मस्ती को मजेदार अंदाज में दिखाता है। हेलो हेलो हेलो। सुप्रभात, सभी का स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की समस्याएं और मस्ती को मजेदार अंदाज में दिखाता है। हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसलिए चुना है क्योंकि यह हमें अतीत और उन खुशनुमा दिनों से जोड़ता है जब लोग हंसी मजाक और अपनापन बांटते थे। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप और टीवी में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने परिवार या पड़ोसियों के साथ समय ही नहीं बिता पाते। मेलजोल इतना कम हो गया है कि लोग कभी कभार ही मिलते हैं, ज़्यादातर त्योहारों पर। यह धारावाहिक लोगों के बीच की एकता और दोस्ती के महत्व को खूबसूरती से दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि खुशी गैजेट्स में नहीं बल्कि साथ मिलकर जीने और रिश्तों को निभाने में है। चलिए देखते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में आज क्या होने वाला है। हमें आशा है कि विद्या वैली के बच्चों द्वारा प्रस्तुत यह नाटक आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। धन्यवाद। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो। हाँ 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 भीड़े बहन, मैं पापड़ का सामान भिजवा दूंगी। हाँ रखती हूँ, बाय। मम्मी मम्मी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ए टपुड़ा, नाश्ता किया कि नहीं? हाँ दादाजी, कब का। मैं पापा की तरह लेट उठकर बिना नहाए नाश्ता नहीं करता। ए जेठिया, तू अभी तक नहाया नहीं? हाँ बापूजी, अभी जाता हूँ 5 मिनट में। अरे दया, एक कप और चाय लाना। हाँ लाती हूँ। बहू एक काम कर, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। भाई तू चाय से नहा ले। ये आइडिया अच्छा है बापूजी। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं, और वो बिस्किट की जगह, साबुन की जगह बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे घिसने का नहीं, सीधा खाने का। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? मजाक मजाक कर रहा हूँ बाबूजी। ए मजाक वाड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
जब देखो तब एक कप और चाय, एक कप और चाय। बंद कर दे तेरा चाय पीना और गांधी जी बन, गांधी जी। गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे। जा चाय पीने जा। अरे नहाने जा, नहाने। चाय डो कायनो। नहाने का बोल रहे हैं बापूजी। हाँ। चल चल गोली, बॉल डाल, विकेट गिरेगा टप्पू का। टप्पू, आज तू बचेगा नहीं। ए टप्पू, चल भाग जाते हैं। भिड़े अंकल बहुत डांटेंगे और पूरी छुट्टी खेलने नहीं देंगे। अरे गोली, तू चिंता मत कर। नीचे आएंगे, थोड़ा डांटेंगे, फिर चले जाएंगे। तू टेंशन मत ले। आओ आओ आयका ना, आप जरा शांत हो जाइए। तू शांत बस। ए टप्पू, क्या है ये? बॉल है अंकल, दे दो ना। अरे निर्लज्ज, वो मुझे भी पता है। तूने फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। देखिए सब लोग, देखिए कि टप्पू ने क्या किया। फिर से मेरे खिड़की का कांच ही तोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा है ना कि दोपहर के समय खेलना मना है। फिर क्यों खेल रहे हो तुम लोग? हाँ, वहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा है ना, पढ़ना नहीं आता तुम लोगों को। सॉरी भिड़े अंकल, हम छुट्टियों के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ खेलते हैं। हा 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 हा। आहो जाओ द्याना, बच्चे हैं, वेकेशन में तो खेलेंगे ही। माधवी, तू गप्पा बस, माला बोलो दे। छुट्टी है तो क्या, नियम तो नियम होते हैं ना, सबको उनका पालन करना पड़ेगा। मैंने कितनी बार बोला है कि सोसाइटी में नियमों का पालन करना जरूरी है, पर ये सुनता ही नहीं, बेशिस्त। अरे अरे भिड़े भाई, ऐसा क्या करते हो? दे दो ना बॉल, बच्चे ही तो है। अरे आओ आओ, पोपटलाल, सोडी, देखो देखो, आपके बच्चे टप्पू के साथ खेल खेल करना बिगड़ते जा रहे हैं। और सोनू, आज के बाद तुम अगर इस टप्पू के साथ खेलते हुए नजर आई ना, तो देखना। अरे बाबा, टप्पू ने जानबूझकर नहीं किया। सोनू, शांत बस तू। ए भाई, ए भिड़े, क्या हुआ भाई? मुझे लगता है जैसे मलेरिया होता है, वैसे इसको टपूरिया हो गया है। जब देखो तब मेरे टप्पू के पीछे पड़ा ही रहता है। अरे छोड़, ये तो बता कि किया क्या है टप्पू ने? अरे जेठालाल, मलेरिया का भी इलाज है, पर इस टप्पू का कोई इलाज नहीं। और क्या किया, तुम्हारे सुपुत्र ने ऐसा शॉट मारा, सीधा हमारा घर का कांच ही टूट गया। शाबाश टप्पू बेटा, क्या शॉट मारा है, मजा आ गया। अरे क्या हुआ, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे वाह, ये देखो बबीता जी भी आ गए। वहाँ क्या हुआ? हाँ, वहाँ बोर्ड पे साफ साफ लिखा है ना कि दोपहर के समय खेलना मना है। फिर क्यों खेल रहे हो तुम बच्चों? ये भिंडी मास्टर, बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे तो खेलेंगे ही ना। चलो ने बॉल दे दे और खेलने दे। चलो बच्चों, जाओ बॉल ले लो और खेलो जाकर। बापूजी। नहीं चाचा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी, ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद बच्चे सोसाइटी में दोपहर में नहीं खेलेंगे। और मैं इस सोसाइटी का मेंबर होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि बच्चे दोपहर को सोसाइटी में खेलेंगे। हाँ। चलो बच्चों, जाकर खेलो, मैं बॉलिंग करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि किसका बाप रोकता है।
अरे शांत हो जाओ यार। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ हाँ, कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? अरे मेहता साहब, ये देखो ना, ये भिड़े बच्चों को कंपाउंड में क्रिकेट खेलने से मना कर रहा है। ये क्या बात हुई यार भिड़े? वेकेशन में अगर बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? और तुम उनको खेलने से क्यों रोक रहे हो? ये गलत बात है। अरे मेहता साहब, मैं इनको खेलने से नहीं रोक रहा हूँ, पर खेलने का एक तरीका होता है ना। ये टप्पू को देखो कैसे खेलता है, सीधा मेरे घर के अंदर शॉट मारा और खिड़की का कांच ही टूट गया। हमारे जमाने में नियम और शिस्त। ए बैटरी, शांत शांत, बस बंद कर दे पुराने जमाने की बातें करना। अरे भिड़े, ये तो बच्चे हैं, ये तो खेलेंगे ही, पर तुम लोग क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अच्छा लगता है कैसे चिल्लाना? थोड़ी सी तो समझदारी रखो यार। और नहीं तो क्या भिड़े भाई? मेहता साहब, सवाल अच्छा है बुरा का नहीं, सवाल है नियम और शिस्त का पालन करने का। मैं नियमों को नहीं छोड़ सकता। आहो काय तुम्ही पण? तो सोसाइटी छोड़ दे भाई, सबको शांति मिल जाएगी। और नहीं तो क्या? अरे मैं तो कहता हूँ जेठालाल कि तुम सोसाइटी छोड़ दो ना, पूरी एरिया को शांति मिलेगी। ए भिड़े, औकात में रहकर बात करने का, समझा क्या? अरे जेठालाल, तुम अपने औकात में रहकर बात करो, ठीक है? समझता क्या अपने आप को? अरे भिड़े चुप रहो ना यार। माधवी भाभी, समझाओ नहीं जरा भिड़े भाई को। हो आहो जाऊ द्या ना आता, सोडा ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? क्या कोई बात नहीं? नुकसान हुआ ना हमारा। और जेठालाल, अगर इस सोसाइटी में रहना है ना, तो नियम और शिस्त का पालन ही करना पड़ेगा। और यही बात मैंने टप्पू को 1000 बार समझाई है, लेकिन वो समझता ही नहीं। अब समझ जाएगा। और समझेगा भी कैसे? अनपढ़ जो ठहरा। मेरे बेटे को अनपढ़ बोला? अरे वो क्या, तुम भी अनपढ़ हो जेठालाल। और तुम क्या, तुम्हारे बापूजी भी अनपढ़ है। बापूजी? हे माँ माता जी। क्या बोला तू? अनपढ़? मैं अनपढ़? मेहता साहब, छोड़िए मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, आप छोड़िए तो सही। अरे जेठालाल, तुम्हारे बापूजी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान अनपढ़ है। ए ये देखो, ये देखो। हे माँ माता जी। मला भिंडी बोललास तू? आई शपथ, रुक। अरे भिड़े रुक जा, रुक जा। ओए बिरू, ठंडा रख यार। सोसाइटी में क्रिकेट तो खेल रहे, तुम सबके बच्चे तो घर बैठ के वीडियो गेम खेलते बैठते हैं। नहीं भाई, ये झगड़ा कैंसिल करो, कैंसिल। ए डिब्बे, शांति से खड़ा रहना। ओ चलो, अब एक दूसरे को माफ कर दो और झगड़ा खत्म करो। अरे ऐसे कैसे मेहता साहब? बापूजी से ऐसा कोई बात करता है क्या? मेरे खानदान को अनपढ़ बोल रहा है। भिड़े, तुमने बहुत गलत कहा है, और टप्पू तुमने भी बहुत गलत बात की है। वो ना भिंडी बोललास मला तू। भाई भिड़े, बस अब चलो, आओ एक दूसरे को माफ करो और खत्म करो ये झगड़ा। अब जब सब ठीक हो ही गया है तो गरबा हो जाए। ए हेलो। नमस्ते, मैं सिया हूँ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन रिश्ते की ताकत माफ़ करने और अपनाने में है। आप ही बताइए, आपने आखिरी बार कब किसी बच्चे की शरारत को मुस्कुराकर माफ़ किया था? इस नाटक में टप्पू सेना क्रिकेट खेलते खेलते भिड़े की खिड़की तोड़ देते हैं। उस वक्त गुस्सा आया, झगड़ा भी हुआ, लेकिन फिर सबने सोचा बच्चे तो बच्चे हैं, गलतियाँ करना उनकी मासूमियत का हिस्सा है। और जब भिड़े ने उन्हें माफ़ किया
तो पूरी सोसाइटी में फिर से हंसी और खुशी छा गई। यही असली संदेश है। जिंदगी में माफ़ करना और भूल जाना ही सबसे बड़ा उपहार है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर अटके रहेंगे तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, लेकिन अगर हम दिल खोलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो प्यार और अपनापन दुगना हो जाता है। फॉरगिवनेस ना सिर्फ माहौल को हल्का और सुखद करता है, बल्कि रिश्तों को और मजबूत भी बनाता है। तो जिंदगी की छोटी छोटी बातों को दिल पर ना ले, उन्हें भूल जाए, क्योंकि माफ़ करने से ही रिश्ते बनते हैं और इसी में ही जिंदगी की असली खुशी छिपी है। धन्यवाद। पात्र परिचय। गड़ा फैमिली से जेठालाल की भूमिका में रौनित। निवेदक कृषिव। दया की भूमिका में तन्वी। निवेदक तोशानी। टप्पू की भूमिका में स्मैन। निवेदक आरव सिंह। बापूजी की भूमिका में आर्यमन। निवेदक निहाल। भिड़े फैमिली से आदि, भिड़े की भूमिका से आदि। निवेदक सिद्धार्थ। माधवी की भूमिका से चारवी। निवेदक अवनी। सोनू की भूमिका से राहिनी। निवेदक कार्तिकी। सोडी फैमिली से रोशन की भूमिका में प्रणवी। निवेदक अभिग्रुति। सोडी की भूमिका से उर्वीर। निवेदक जैनिल। हाथी फैमिली में कोमल की भूमिका से अन्वी। गोली की भूमिका से गौरांग। निवेदक वंश। मेहता फैमिली से तारक मेहता की भूमिका में मौलिक। निवेदक अनीश। अंजलि की भूमिका से स्वरा। निवेदक कार्तिकी। पोपटलाल की भूमिका से विवान पाटिल। निवेदक वंश। पिंकू की भूमिका से आदर्श। निवेदक वंश। धन्यवाद। और बबीता की भूमिका से निक्की। निवेदक त्रिशा।